transformation is the name of the game, my friend. Inner transformation. दोस्तों आज का ये सेशन खास है और आज के सेशन को और भी खास बनाने के लिए खास मेहमान है, खास स्पीकर है और खास गेस्ट है. Now today you're going to learn a lot of things about your own self and how you can do few things to get that inner transformation. Inside out, that's the name, right? Remember, I said it before, I say it again. Inside out. And I want to invite the expert on screen before we delay it any further. I do not want to take too much time. I want to straight away invite the man of the moment. He is the #1 best-selling author of the book Inner Transformation. Now imagine the topic and the topic of the book straight away. Yeah. And this is happening for the first time in the summit, by the way. और आज के जो expert है, he's a coach, he's a trainer, he's a speaker, he's an entrepreneur. Now he has a story in him. He's a story in himself. ये आप सीखेंगे, ये आप सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी. How he has changed his own life with the inner transformation that he was able to bring in himself. I'm excited to bring on screen the one and only Mr. Sumit Kumar Sood. Can we have on screen there? Sumit, good evening. How are you, my friend? Good evening. I'm so good. Good to see you there. Inner Transformation is the name, as I said, and I'm excited to have you here, Sumit. First of all, before I go ahead, before I get into the topic, I want to hear it from you. What's your take on the Superpower Success Summit? 30 days, 30 speakers live for free. What do you think about this? I think this was an awesome effort from your side and from your team side, क्योंकि इन कुछ दिनों में मैंने इतना कुछ सीखा है, like so many different topics. I think I should clap for you and your team. It is really something awesome. Thank you so much, Sumit. Makes a lot of sense, and it gives us a lot of pride when we hear it from people like you, right? Everybody needs that, and your words will encourage us to keep serving the community better, more and more in future. Now, Sumit, coming to Inner Transformation, अब जल्दी से ये बताओ, आज what is it that you have in store for us? आज क्या हम बात करने वाले हैं? What to expect? As the topic goes, we are going to talk about inner transformation. मैं कहीं भी जाता हूं ना तो सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन होता है कि why inner transformation and why I need to change. True. अब inner transformation को I am going to connect with 3 of my biggest learning in my life. Wow. First thing, you have to live in the moment. क्योंकि जो सब कुछ है वो इस मोमेंट में है. जो आज समय में आपसे बात कर रहा हूं, this moment is never going to come back. ये मेरे लाइफ के वो प्रेशियस टाइम है. सेकेंड, एवरीथिंग इज एनर्जी, और आज मैं एनर्जी को जोड़ने वाला हूं इनर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हर एक चीज के ऊपर. ओके. देन लिविंग इन द प्रेजेंट, एवरीथिंग इज हियर, और हमने हर मोमेंट पे खुश रहना कैसे सीखना है एनर्जी के टर्म्स पे, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे. एंड नाउ वील टॉक अबाउट चेंज, we'll talk about acceptance, and then we'll talk about surrender, all related to transformation. That is indeed sounds really powerful to me, Sumit. Dosto, present moment, energy, acceptance, surrender are the keywords, and Sumit is going to take us deep into this. I'm excited, looking forward to hear you, Sumit. Sumit, I am taking my notes. Over to you, my friend. Thank you. तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट. लेकिन स्टार्ट करने से पहले ना मैं चाहूंगा कि आज सब लोग अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखें और आज अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें. आप किसी के बारे में भी बहुत कुछ सुनते हैं और सबसे पहले जब कोई खुशी की बात होती है आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि any journey which starts, it's 1,000-mile journey starts with the first step. और इस सेशन को अटेंड करके और इससे पहले जितने भी समिट में सेशंस जिनको आपने अटेंड किया है उनको करने के बाद अपनी आपने वो जर्नी जो है ना वो स्टार्ट कर दी है कि एवरी डे यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. और इस समिट को स्टार्टिंग से जितने भी आपने आज सेशंस अटेंड किए हैं,
अटेंड करने के बाद वो आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है और आपने बहुत सारे कदम उठा लिए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए और आज मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए तालियां बजाएं और अपने लिए क्लैपिंग करें जो आपने इतना बेहतरीन काम किया है। लेट्स स्टार्ट। जब भी मैं किसी सेशन में जाता हूं या कहीं भी जाता हूं तो सबसे पहले लोगों का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माय ओन लाइफ। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन few year back when I was a young person, maybe जब मैं 10th क्लास के अंदर था और अपनी स्कूल टाइम में था, मैं अपने आप को समय मानता था कुएं का मेंढक, अगर मैं आज उस चीज को रिव्यू करूं, क्योंकि मेरी बहुत ही लिमिटेड सर्कल था, मेरे को इतना इंफॉर्मेशन नहीं था, मेरे को एक्सपोजर नहीं था। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। आई वाज गुड इन स्टडीज। 10th क्लास के अंदर मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम दिए और जब मैं बाहर निकला तो मेरे मैथ्स के टीचर ने मुझसे पूछा हाउ वाज इट। आई सेड सर इट वाज सो गुड एंड आई एम गोइंग टू स्कोर अराउंड 98%। आई वाज सो श्योर। रिजल्ट आया, आई हैड जस्ट 84 ऑन माय मार्कशीट। मुझे ये भी नहीं पता था कि आप अपने पेपर को रीवैल्यूएट करा सकते हैं, रीचेक करा सकते हैं। दैट वाज वेयर आई वाज फ्लोटिंग एट दैट टाइम। आगे चलें। 12th क्लास के अंदर मैंने नॉन मेडिकल लिया हुआ था। समहाउ मुझे ये भी नहीं पता था उस समय कि कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारियां कैसे होती हैं। मेरे एक्सपोजर्स बिल्कुल जीरो था। मेरे फ्रेंड ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, एंड आई वाज फॉलोइंग। मेरे को बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं थी, मेंटरशिप नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था। किसी तरह मैंने वो जो अपने पेपर्स दिए, मैंने कंपटीशन ट्राई किया, मैं क्लियर नहीं कर पाया। करना कुछ और था, नहीं हो पाया। आई कुड नॉट कन्विंस माय फादर। मैंने एक ईयर ड्रॉप किया। आई वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट। उस समय मैं नहीं कर पाया। मैंने वो कंपटीशन क्लियर नहीं किए। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि डोनेशन कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाता है। आई कुड नॉट कन्विंस माय फादर फॉर इट। लेकिन वहां से मेरी लाइफ में जो चेंजेस आने शुरू हुए, जैसे ही मैंने वहाँ कॉलेज गया, मैंने साथ में बहुत सारे कोर्सेज करने शुरू कर दिए। मैंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना शुरू कर दिया और मैंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। कभी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का मैं मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ, मैं ज्वेलरी का कोर्स कर रहा हूँ, मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रहा हूँ, मैं जेम टेस्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशन का कोर्स कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लाइफ में। फादर के मैंने बिजनेस को जब ज्वाइन किया और उसके बाद मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो गई। एंड एट द यंग एज ऑफ 23 years, I was the managing director of a finance company, a registered finance company with Reserve Bank of India at the age of 23. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलनी शुरू हो गई। उस समय बहुत फास्ट ग्रोथ मिली और फेम भी मिल रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी। लेकिन वही प्रॉब्लम आई एक्सपोजर की। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अपनी टीम कैसे बिल्ड करनी है, मुझे कितनी ग्रोथ चाहिए और मुझे कैसे बैकिंग चाहिए। मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। और इन सब प्रॉब्लम्स के बाद हुआ क्या, 5-6 साल की ग्रोथ और एंजॉयमेंट के बाद मैं एक ऐसे सर्कल में फंस गया कि आई वॉज अंडर अ ह्यूज डेट इन करोड़। वही लोग जिनके ऑफिस में मैं जब जाता था और वो बाहर अपने केबिन से निकल के मुझे ग्रीट करने के लिए आते थे, अपने साथ अंदर लेके जाते थे, आज उन्हीं लोगों ने मेरे साथ चेहरा मोड़ लिया। मुझे उन्हीं लोगों से मिलने के लिए उनके ऑफिस के बाद 2-2, ढाई घंटे बैठ के वेट करना पड़ता था। और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो क्या रहा था, मैं 10 से 11-12 घंटे काम कर रहा था, स्टार्टिंग एट 10 in the morning till 11 in the night। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि 30 दिन के अंदर 15 दिन तो मैं लंच करने का भी मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं इतना बिजी होके इतनी मेहनत कर रहा था, बट दैट वाज अ वन मैन शो। मुझे नहीं पता था मुझे टीम कैसे बनानी है, मुझे वर्क को डेलीगेट कैसे करना है, मैंने मैनेज कैसे करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे मेंटरशिप नहीं थी, गुरुज नहीं थे, नॉलेज नहीं थी। सब कुछ था, एक जज्बा था जीतने का, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली मेरे पे बहुत सारे
कोर्ट केसेस हुए, मैंने भी बहुत लोगों पे कोर्ट केसेस किए, फाइनेंसिस के अंदर मैं फंस गया और एक टाइम आया कि मैं बिल्कुल मुझे सब स्टॉप करना पड़ा एट दिस मोमेंट। लेकिन यहाँ पर अपने अंदर एक विश्वास था और मेरी लाइफ के अंदर बहुत से मतलब आप कह सकते हैं सक्सेस स्टोरीज आई, फेलियर स्टोरीज आई, लेकिन हर बार मैं उठ के खड़ा हुआ। आज से बात कर रहा हूँ, लेकिन 2015 में 13th ऑफ नवंबर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ विच आई विल बी शेयरिंग इन माय अपकमिंग थर्ड बुक। आई वॉज सो डाउन विद माई एनर्जीज। मैं इतना नीचे चला गया कि आई कुड नॉट स्पीक इवन अ सेंटेंस विदाउट क्राइंग। कैन यू बिलीव इट? मैं 1 महीने तक अपने ऑफिस नहीं गया, मेरी एनर्जीज पूरी डाउन हो गई। मेरे मेडिकल टेस्ट में मेरी इम्यूनिटी डाउन थी, मुझे कोई डिसीज वगैरह नहीं थी, लेकिन मेरे सारे ब्लड टेस्ट के अंदर दे वर बोल्ड मार्क्स। आई वॉज टोटली डाउन। वहां से मैं फिर से खड़ा हुआ। अब मुझे अपने बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस मिल चुके थे, बहुत सारे फेलियर्स मिल चुके थे, और उस टाइम मैंने मान लिया कि आई एम अ मिस्टेक मेकिंग मशीन। जी हाँ, मैं अपने आप को कहता हूँ मिस्टेक मेकिंग मशीन। मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आए और मैंने वहां पे एक चीज सीख ली थी कि दुख और सुख तो आपकी जिंदगी में आने ही वाले हैं, बिकॉज दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। आपकी जर्नी ऑफ लाइफ में बहुत टाइम में ऊपर जाएंगे, बहुत टाइम नीचे आएंगे, लेकिन सीखना आपने क्या है कि जिस तरह आप देखते हैं ना हॉस्पिटल्स में स्क्रीन्स लगे होते हैं, ईसीजी वाले, उसमें इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी जा रही होती है। तो बहुत टाइम आपके लाइफ में ऐसा होगा कि आपकी बहुत खुशी आएगी, तो उस समय आपने एक बैलेंस लाइफ जीनी है कि बहुत ज़्यादा खुशी में आपने खुश नहीं होना और बहुत ज़्यादा दुख में आपने दुखी नहीं होना। आपने बैलेंस लाइफ लेके चलनी है, क्योंकि आप रोशनी को भी तब एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको पता होगा कि अंधेरा क्या है। बिना अंधेरे के रोशनी अधूरी है। हर दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सवेरा होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम माय ओन लाइफ। तो आज मैं सेशंस करता हूं, पब्लिक स्पीकिंग करता हूं, एंड आई हैव कम बैक फ्रॉम अ टाइम in 2015 I could not speak even a line without crying. So my life has been full of failures and full of success, but every time I've learned one thing: to bounce back. तो चलिए अब बात करते हैं why inner transformation is important, why a change in life is important. अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि जो चेंज है वो हमारी लाइफ की जो जर्नी है उसकी एक सच्चाई है? अब देखें, आप पैदा हुए, वहाँ से धीरे धीरे आप बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, वहाँ से थोड़े टाइम बाद आपका करियर स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से आपकी मैरिज होती है, मैरिज के बाद आपकी फैमिली लाइफ स्टार्ट होती है, फिर आपके बच्चे होते हैं। तो हर एक मूवमेंट पे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? हर मूवमेंट को बेस्ट जीना। तो उसके लिए मैंने पहले बोला था कीप योर पेन्स एंड पेपर्स रेडी, क्योंकि अब हम एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करने वाले हैं। इट विल हार्डली टेक 3 to 4 minutes and you will understand why transformation is needed in your life or it is not required. मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, कुछ पैरामीटर्स दूंगा, और उस हर वर्ड पे आपने उसको स्केल करना है अपनी आज की लाइफ के हिसाब से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अगर आप देखिए कि सपोज जैसे पहला वर्ड मैं आपको देने वाला हूं हेल्थ। अब आपको अपने आज की लाइफ के हिसाब से अपने हेल्थ को मार्किंग देनी है फ्रॉम 1 to 10। 10 इज द लोएस्ट, आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं तो 8, 9, 10। इन 10 पैरामीटर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसको कैसे रीड करना है। तो चलिए, आर योर पेन्स एंड पेपर एंड योर डायरी रेडी? लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट पैरामीटर इज हेल्थ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब आप इसको मार्किंग दें ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। आई होप यू हैव डन इट। सेकेंड, फैमिली एंड फ्रेंड्स।
your relationship with your family and friends. फिर से इसको आपको 1 to 10 के स्केल पे रेटिंग करनी है. थर्ड, योर रिलेशनशिप्स. फोर्थ, आज के हिसाब से अगर आप वर्किंग हैं तो आपका करियर 1 to 10 के स्केल पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं. आर यू सेटिस्फाइड, आर यू नॉट सेटिस्फाइड, यू आर हाईली सेटिस्फाइड. रैंक इट ऑन 1 to 10. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो क्लास में परफॉर्मेंस हो रही है उसके हिसाब से आप आपको रैंक करें ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. नेक्स्ट, which is the fifth point after career, is learning and personal growth. आप अपने हिसाब से अपने आप को रैंक कीजिए. इस वर्ड को लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ पे आप 1 से लेके 10 तक क्या मार्किंग देंगे आपको. देन इन योर लाइफ 6 point, happiness and peace. How happy you are today at this moment. How peaceful is your life on a scale of 1 to 10. 7 point, personal satisfaction. आज अगर आप अपने आप को जज करेंगे ऑन लेवल पर्सनल सेटिस्फैक्शन तो आप अपने आप को कितने मार्क्स देने वाले हैं. 8th point, वेल्थ. आज की डेट में जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, यू आर हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी, उसको आप पॉइंट्स दीजिए नंबर 8 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. 9th point इज स्पिरिचुअलिटी. आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के क्या मायने हैं, हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट. प्लीज मार्क ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. 10th point, टाइम स्पेंट ऑन थिंग्स यू लव टू डू. आप ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं आप उनको अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. अच्छे से कर पा रहे हैं तो 10, 8. अगर नहीं कर पा रहे मीडियम 5. अब आप ये सब ना जो आपने 10 पैरामीटर्स हैं मैं आशा करता हूं कि आपने सब पे रैंकिंग कर दी है. अब सिंपल है, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं. आप जल्दी से इसका टोटल कर लीजिए कि आउट ऑफ 100 हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड. और जैसे ही आपका टोटल हो जाए तो चैट बॉक्स में मेरे साथ आप शेयर करें कि आपने 100 में से कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं. I am waiting to see your results. This is a self-assessment test. आपने खुद टोटल करना है, आपने खुद असेसमेंट की है, आपने खुद चेकिंग करी है और आपने प्रॉपरली अपने मार्क्स को अब शेयर करना है. This much numbers you have scored. I am waiting. जल्दी से चैट बॉक्स में अपने स्कोर को, अपने रिपोर्ट कार्ड को शेयर कर दीजिए. ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया. जल्दी से सब कर दीजिए. चलिए, बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया है और उनके पॉइंट्स देख के अब इस सेल्फ अटेस्टमेंट करने का हमारा अभी एक तो ये लॉजिक है कि अब आप देख सकते हैं कि जो भी ये 10 पैरामीटर्स के ऊपर पे आपने पॉइंट्स दिए हैं, अगर आपका स्कोर 80 से कम है तो इट मीन्स समवेयर यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. अब कौन कौन से एरियाज में आपके पॉइंट कम आए हैं. सपोज अगर आपने हेल्थ में 5 या 6 पॉइंट्स दिए हैं तो अब आपको क्लैरिटी है कि हेल्थ एक ऐसा आपके लाइफ में है जहां पर आपको उस पर फोकस करना है और आपको उसको बेटर करना है. या आपके करियर में आपके कम पॉइंट्स हैं तो अब आपको पता है कि करियर पे आपको फोकस करना है. अगर वेल्थ पे कम है या फिर आपके रिलेशनशिप में कम है, अब आपको क्लैरिटी आ गई कि किस एरिया ऑफ योर लाइफ में आपको काम करना है. अब इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं. अब आप बताएं, द मोमेंट यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, हाउ इज योर मॉर्निंग? इज इट डल or you are excited? Is it a very important day, a day full of energy,
और इट्स जस्ट अनदर डे। आप उठे हैं, आपको पता ही नहीं है। सेकेंडली, जैसे ही आपने उठे हैं, इमीडिएटली किस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, डर के थॉट, एंजाइटी के थॉट, या किस टाइप के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। दिन के अंदर आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है, आर यू हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, या फिर आर यू लविंग, आप क्या यू लव व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इन योर करियर एंड एवरीथिंग। देखिए, अगर आप अपने करियर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता होगा, या फिर आप ऑफिस जाते हुए रोज अपनी घड़ी को देख रहे हैं कि कब 5 बजे और आप वहां से निकलें। कब ऐसा हो रहा है कि आप सैटरडेज की वेट कर रहे हैं कि अगले दिन छुट्टी आने वाली है, या कब आप वेट कर रहे हैं संडे को, आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, अरे यार कल तो ऑफिस जाना है, अनदर इशू। अगर इस तरह के ख्याल आपके आ रहे हैं, कितना टाइम आप अपने आप को लोनली फील करते हैं, कितना टाइम ऐसा होता है कि जब आप कुछ कर रहे हैं, आप फियर में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, टेंस हो रहे हैं, मतलब इस तरह की कैसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको। ये थोड़ी थोड़ी चीजों पे अगर थोड़ी सी आप अवेयरनेस डालेंगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो थर्ड है एक्सरसाइज, वो आप बाद में करिएगा इस सेशन के। सिंपल आपने करना क्या है, अपने घर में कहीं भी एक छोटे से कोने में आप बैठ जाएं और बैठ के कुछ देर के तक आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें एंड ट्राई टू गो इन दैट थॉटलेस पोजीशन। और आप देखें आप कितने टाइम उस थॉटलेस पोजीशन में रह सकते हैं, या बार बार आपका कोई ना कोई थॉट आपको तंग कर रहा है और बार बार आप किसी डिफरेंट थॉट्स के अंदर जा रहे हैं और बिल्कुल बैठ नहीं पा रहे, और फिर आप कितनी देर बैठ पा रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, अब ये तीनों जो आप कवर करेंगे, तो यू विल get the complete understanding whether you need clarity in your life or you need transformation in your life। और अब आपके पास पूरी क्लैरिटी है कि कौन कौन से आपके लाइफ के एरियाज हैं जहां पर आपको काम करना है। ठीक है, अब आपने बचपन में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा, जहां पे आई थिंक मैंने भी किया था, कि जब सूर्य की रोशनी में हम जाते थे और एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके एक पतले से पेपर के ऊपर उसकी हम रेस को फोकस करते थे और किस तरह मैजिकली वहां पे आग लग जाती थी। तो दैट वाज द फंडा ऑफ फोकस। नाउ आई वांट फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, हम जितनी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं ना, आई वांट योर फोकस टू बी कंप्लीटली इन द सेशन, ताकि हम ये जो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं ना, मैं मानता हूं इनमें से मैक्सिमम चीजें ना आपको पहले से पता होंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगी, लेकिन आज ना हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। और वो जब कॉन्शियसली आप अवेयरनेस के साथ उसके बारे में सोचेंगे ना, तो यू विल हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कि झूठ बोलना गलत है, सबको पता है किसी को धोखा देना गलत है, बट स्टिल कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम उसको करते हैं, राइट? तो सबसे पहले, इफ यू आर रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ बिलीफ सिस्टम। सपोज हमारे हिंदुस्तान का सबसे जो कॉमन बिलीफ सिस्टम है ना, जो हमारे सीनियर्स बहुत यूज करते हैं, हमने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ों पे नहीं उगता। तो ऐसी एक ज्ञानी व्यक्ति ने एक बार मेरे को भी ये डायलॉग बाला मेरे सामने कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने उससे एक सिंपल सवाल किया, अच्छा अगर पैसा मेहनत से ही कमाया जाता तो हमारे देश में जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा वाला है, ये लोग करोड़पति क्यों नहीं होते? अब वो ज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल फंस गया अपनी बातों में। तो उसने मुझे थ्योरी ऑफ कर्मा सुनानी शुरू कर दी, लक फैक्टर्स सुनाना शुरू कर दिया, पास्ट लाइफ के कर्म बताने मेरे को शुरू कर दिए। तो इन सब चीजों से मैं समझ गया कि ये ज्ञानी नहीं है। पैसा कमाने के लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द स्मार्ट वर्क एंड द हार्ड वर्क। तो चलिए अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम की। होता क्या है, द मोमेंट अ मदर इज गेटिंग प्रेग्नेंट और वो जो सोल उनके वूम में आती है अराउंड 3 मंथ्स के आसपास, वहां से लेके टिल द एज ऑफ 8 इयर्स जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसके अंदर कोई कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं। एवरीथिंग इज सबकॉन्शियस,
एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग मोड। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे वो जो मदर है उसके साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा है, हस्बैंड के और वाइफ के कैसे रिलेशनशिप हैं, उनकी फैमिली में उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उनकी एनवायरनमेंट कैसे है, जब बच्चा पैदा होता है तो हर चीज कैसे उसके सामने हो रही है, उसका नेबरहुड, उसके रिलेशंस, एवरीथिंग जो बच्चा है ना वो रिकॉर्ड करता जाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और यही 0 to 8 ईयर्स का जो टाइम है ना, ये उस बच्चे की पूरी लाइफ को चलाने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे उसने बिलीफ सिस्टम अपने बना लिए हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो जो चीज भी वो देख रहा है, सीख रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, हर एक चीज, आप बिलीव करेंगे कि अगर एक छोटे बच्चा जो होता है ना पैदा हुआ, तो उसके आगे से कोई चूहा या कोई छिपकली, लिजर्ड वगैरह निकले ना, वो कभी भी पहले उससे डरता नहीं है। हम क्या करते हैं, उसको पहले बोल के, एक्शन के थ्रू डराते हैं, और हम उसके माइंड में ये बिलीफ सिस्टम डालते हैं कि ये चूहा या लिजर्ड जो है ये डरने की चीज है। और हमने जो एक्शंस किए, वो उसको जो जिस आवाज में उसको बताया, और उसके अंदर हमने ये फिट कर दिया कि ये डरने की चीज है, तो उसने क्या बिलीफ सिस्टम बनाया कि ये डरने की चीज है, तो नेक्स्ट टाइम जब उसके सामने आएगी तो उससे डरेगा। सिंपल सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि ओनली 5% ऑफ द स्नेक्स आर पॉइजनस, लेकिन आपके सामने कोई भी सांप आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में है डर, तो इमीडिएटली क्या होगा, आप सांप को देखते ही डर जाएंगे और आप अपने उस डिफरेंट मोड में आ जाएंगे। तो 0 to 8 ईयर्स इज द बेस्ट टाइम जहां पे आप अपने बच्चे के अंदर बेस्ट बिलीफ सिस्टम्स इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको कैसे टाइम पे ब्रश करना है, अपने खिलौने वापस रखने हैं, इस तरह की बुक रीडिंग के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हैं। और यही टाइम है बॉन्डिंग बनाने का उस बच्चे के साथ। 0 to 8 ईयर्स और फिर 9 से लेकर 10-12 साल तक आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं, उसकी पढ़ाई के अंदर, उसके खेल कूद के अंदर कितना टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसकी रिकॉर्ड होती जा रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल। अब ये होता क्यों है, आई विल एक्सप्लेन यू। जो हमारा माइंड होता है ना, जो ब्रेन है, अगर बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो इस एवरेज आदमी का जो बॉडी वेट के हिसाब से सिर्फ 2% ऑफ द वेट इज योर ब्रेन्स वेट, हार्डली 1200 to 1400-1500 ग्राम्स। लेकिन ये पूरा का पूरा ब्रेन, जो ब्रेन है, ये पूरी हमारी उम्र चलाने वाला है। अब ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमारा जो माइंड है इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज द कॉन्शियस माइंड एंड वन इज द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज आर एनालिटिकल माइंड, वो है जो डिसीजन ले सकता है, वो जो है वो सोच सकता है, वो एनालिसिस कर सकता है। लेकिन जब भी उसने उसको एक बार एक्सेप्ट कर लिया और अपना एक वो बिलीफ सिस्टम बन गया, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो स्टोर हो जाता है। और बहुत हैरानी की बात है कि एक एवरेज व्यक्ति का जो कॉन्शियस माइंड है इट इज जस्ट 4 to 5% एक्टिव एंड 95% इज द सबकॉन्शियस माइंड। अब आप इससे समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। ओनली 4 to 5% इज कॉन्शियस, 95% इज सबकॉन्शियस। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप कोई भी एक 10-15 साल पुरानी फोटो आप ले लीजिए और उसको सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए देखिए। अभी तक आप उसको कुछ भी, आपको उस फोटो के बारे में याद नहीं था, आप फोटो को देखने के बाद आपको कितनी सारी चीजें याद आ जाएंगी। वो दिन याद आ जाएगा, कौन कौन आपके साथ थे, हो सकता है आपको याद आ जाए कौन सी बातें हुई थी, और शायद आप वो इमोशंस भी, अगर किसी ने हर्ट किया हो तो यू कैन फील दो सो इमोशंस आल्सो जस्ट बाय लुकिंग एट द फोटोग्राफ। तो अब हुआ क्या, ये सब चीजें स्टोर्ड कहाँ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। Such is power of the subconscious mind। क्या आप जानते हैं, जब आप सो रहे हैं, कॉन्शियसली आप सो रहे हैं, लेकिन उस समय भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। आप ब्रीदिंग कर रहे हैं सबकॉन्शियसली, ठीक है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, आपका खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम कर रहा है, और आपकी पूरी बॉडी काम कर रही है। दैट इज वाई प्रॉपर स्लीप इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी की रिकवरी होती है, ऑल डन बाय सबकॉन्शियस माइंड।
कभी आपने देखा है कि आपके हाथ पे छोटा सा कट लग जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसको हील करना शुरू कर देती है। आप में कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो एकदम सबकॉन्शियस माइंड आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और आप वापस अपनी हेल्थ में आ जाते हैं। दिस इज ऑल द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सो पहली चीज, 0 to 8 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे बनते हैं? हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से। अब लाइफ एक्सपीरियंस देखिए, मैं आपको छोटा सा अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ अपनी लाइफ से। आई थिंक आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड और उस दिन मैडम हमारी ना क्लास में पेपर चेक कर रही थी और पेपर चेक करते करते मेरा एक फ्रेंड उनके पास खड़ा था और वो मेरे पास आया और उसने बताया कि सुमित कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा क्या हुआ? कहते तेरे ना मैथ्स में सिर्फ सॉरी हिंदी के अंदर पेपर के अंदर ओनली 44 मार्क्स थे, लेकिन मैम को तेरी हैंड राइटिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1-2 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा मार्क देके तेरे 46 कर दिए हैं एंड नाउ योर्स इज द सेकंड हाईएस्ट। अब क्या हुआ? इस लाइफ एक्सपीरियंस से मेरे अंदर क्या एक थॉट बना, जो बिलीफ बना वो ये बना कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गुड है, बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं हिंदी का होमवर्क कर रहा था तो स्पेशली मैंने उसको और सजा सजा के लिखा टू इम्प्रेस माय टीचर। क्योंकि होता क्या है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें बहुत पसंद होता है जब हमारी तारीफ होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और वो मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन गया और आज तक मुझे अपने हैंड राइटिंग के ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी क्लास में एक लड़का था विकास, उसके कभी भी मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और शायद उसको टीचर ने 2-3 बार इस तरह से क्लास में सब बच्चों के आगे बोल दिया कि ये सब्जेक्ट तुम्हारे बस की नहीं है। काउंटर 1-2 नेक्स्ट एग्जाम में उसके मार्क्स कम आए और उसको एक उस पे स्टैंप लग गई, उसने दिमाग में बिठा लिया। कुछ बच्चों ने उसको छेड़ना शुरू कर दिया कि मैथ्स में यू आर जीरो, गोल वो समथिंग करके। एंड आई स्टिल रिमेंबर ही वाज विद मी टिल आई थिंक 8th स्टैंडर्ड और कभी भी उसने जब बिलीफ सिस्टम बना दिया कि मैथ्स उसके बस की नहीं है तो हमेशा उसके या तो मैथ्स में फेलिंग मार्क्स आते थे या जस्ट ऑन दी वर्ज की मतलब पासिंग मार्क्स आते थे, वो कभी अच्छा नहीं कर पाया। अब इतना स्ट्रांग है हमारा बिलीफ सिस्टम। आपको पता है हाथी इतना बड़ा जानवर, आपको पता है जब उसको ट्रेन किया जाता है, जब उसको पकड़ा जाता है तो उसको जंजीरों से इतनी बुरी तरह से बांध दिया जाता है, वो काफी टाइम तक ट्राई करता है अपने को छोड़ने के लिए और एक मोमेंट ऐसा आता है ही जस्ट गिव्स अप। और उसके बाद जब वो ट्रेंड हो जाता है उसको बस उस छोटी सी उसी जंजीर से बांध के, चाहे एक छोटी की लकड़ी के साथ भी उसको अटैच कर देंगे ना, वो कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि उसने बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन और वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। बिलीफ सिस्टम, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बिलीफ सिस्टम इज रिलीजन। अब रिलीजन क्या है? हमारा बिलीफ सिस्टम है। अगर हम हिंदू फैमिली में पैदा हुए तो हमारे सारे के सारे जो भी बिलीफ होंगे, रिचुअल्स हम सीखेंगे वो हिंदू फैमिली के हिसाब से। अब मुस्लिम के अंदर होंगे तो वो मुस्लिम फैमिली में बच्चा होगा तो उन्हीं के हिसाब से सीखेगा। सेम विद क्रिश्चियन एंड सिक्स। अब एक मुझे छोटी सी बात बताओ कि अगर 2 बच्चों को एक्सचेंज कर दिया जाए हॉस्पिटल में, अगर गलती से वो बदल जाए हॉस्पिटल में और हिंदू का बच्चा इधर और दूसरे धर्म का बच्चा इधर, तो वो अपने एनवायरनमेंट से क्या सीखने वाले हैं? वो वही प्रैक्टिस करेंगे जो एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो रिलीजन इज ऑल्सो अ बिलीफ सिस्टम। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अब एक छोटी सी मुझे बात बताएं। आप एक रेस दौड़ने वाले हैं और जब अबाउट टू स्टार्ट आपको एक मैसेज मिलता है कि आज आपके साथ जो दूसरा एक रन कर रहा है वो स्टेट चैंपियन है। अब अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस, आपने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप एक स्टेट चैंपियन के साथ दौड़ रहे हैं एंड योर चांसेस आर नेग्लिजिबल ऑफ विनिंग, तो क्या होगा? आप वो रेस दौड़ेंगे जीतने के लिए या वो रेस दौड़ेंगे आप हारने के लिए। दूसरी तरफ आपकी चॉइस होगी, आप ये सोचें कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस करी है और इस प्रैक्टिस के बाद यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन दिस रेस एंड यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट। एंड बिलीव मी, जब आप इस बिलीफ के साथ दौड़ेंगे कि यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट, यू विल बिलीव इन योर ओन स्ट्रेंथ्स, आप अपनी जिंदगी का बेस्ट उस रेस में देने वाले हैं। सच स्ट्रॉन्ग इज द बिलीफ सिस्टम। अब बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारी बॉडी में मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ चुके हैं। अब आपको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना है,
अगर आपको लगता है कि कोई बिलीफ सिस्टम आपने वो 0 to 8 ईयर्स में ले लिया है या फिर कुछ लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से वो हो गया है, जैसे कि भाई अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो अब उसको चेंज कैसे करना है? सबसे पहले इसमें जो बेस्ट पार्ट होगा ना आपको मन चेंज करने का, वो होगा एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या हैं? सपोज आपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया कि मनी इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये आपने एक नोट किया बिलीफ सिस्टम। अब आप इसमें बिलीव नहीं करते एंड यू थिंक दिस इज नॉट राइट। तो अब आपको करना क्या है? इसके काउंटर में आप लिखिए आई लव मनी। मनी के बारे में आप पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखिए, आई लाइक मनी, आई लव इट। और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और जब वो आप सेंटेंसेस बना लिए ना, तो आपने उसको हर समय रिपीट करना है। और बेस्ट टाइम रिपीट करने का क्या है? व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, क्योंकि आपका जो माइंड है उस समय एक रिसीविंग स्टेट पे है, या फिर जस्ट सोने से पहले आप उसको कॉन्शियसली रिपीट किए, आई लाइक मनी, आई लव इट, आई यूज इट वाइसली, मनी इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग इन माई लाइफ। इस तरह के अच्छे अच्छे एफर्मेशंस आप लीजिए, कुछ गूगल में देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और धीरे धीरे जब आप इसको करने लगेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो माइंडसेट है ना, आपका जो यहाँ बिलीफ सिस्टम है सबकॉन्शियस माइंड में, वो चेंज होने लग जाएगा। जैसे मैंने एक बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, मैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए व्हेन आई एम वॉकिंग या मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ आई एम होल, perfect, strong, powerful, loving, harmonious and happy। मैं इतने पावरफुल वर्ड्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालता हूँ। और एक इसका बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। मैंने अपने फ़ोन में अपनी ही आवाज़ में एक 20 मिनट की मैंने एफर्मेशन की रिकॉर्डिंग की हुई है। वो पहले मैंने अपनी लाइफ के हिसाब से जो मेरे नेगेटिव थॉट प्रोसेस थे, जिनको मुझे चेंज करना था, जैसे कि मेरे अंदर पहले एक बहुत बुरी आदत थी आर्ग्यूमेंट की, कि मैं हर किसी से आर्ग्यूमेंट करने लग जाता था। और जब मैं आर्ग्यूमेंट करने लगता तो धीरे-धीरे मैंने ये देखा कि मैं जब आर्ग्यूमेंट डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट में लेके जा रहा हूँ और आर्ग्यूमेंट के बाद मैं इतनी एक्सट्रीम तक जा रहा हूँ कि आई एम हर्टिंग माय फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी अराउंड मी। मुझे समझ आ गया था। अब मैंने उसको चेंज कैसे किया? मैंने उसका एक बनाया अफर्मेशन, आई एम अ वेरी गुड लिसनर, आई एम अ वेरी गुड लिसनर। और मैंने उसको बहुत बार सुबह उठते ही, दोपहर में, आई एम अ वेरी गुड लिसनर, आई एम अ वेरी गुड लिसनर, आई एम अ वेरी गुड लिसनर, रिपीटिशन 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 किया। और मैंने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर दिया कि आई एम अ वेरी गुड लिसनर। अब जो मेरी वीडियो, अपनी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है फ़ोन पे, अभी भी ये एक एफर्मेशन उसमें है। मैंने पूरे 20 मिनट्स का अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया हुआ है। और मैं सुबह उठते ही अपने एयरपॉड्स लगा के उसको सुनता हूँ, सोने से पहले सुनता हूँ। एंड इट इट्स गिविंग मी वंडरफुल रिजल्ट्स। ठीक है? तो ये तो हो गया आपके लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर एफर्मेशन से आपने कैसे चेंज करना है। सेकंड, मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। आपकी लाइफ के अंदर जो कोई भी इंसिडेंट होता है, बुरे से बुरा इंसिडेंट, वो आपके ऊपर है कि आपने उससे क्या लेसन लेना है। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू कि उस लाइफ इंसिडेंट से आप क्या लेसन लेने वाले हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। 2020 जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, मैं इंडिया गेट से कहीं सेंट्रल प्लेस से जा रहा था, तो इतने में मैंने रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी की हुई थी और लेफ्ट साइड से किसी ने मुझे नॉक किया और मुझे इशारा किया कि मैं अपने विंडो को डाउन करूं। और ऐसे मतलब एक्टिंग कर रहा था वो कि मैंने उसको कोई गाड़ी, उसको मैंने एक्सीडेंट कर दिया, उसको चोट लगी है। एंड विदाउट रियलाइजिंग मैंने अपना विंडो नीचे कर दिया। मैंने विंडो नीचे किया ही था कि राइट साइड से किसी ने बहुत जोर जोर की ना मेरे को वहां पे बीट करना शुरू कर दिया, मेरे विंडो को दूसरी तरफ से। माई माइंड गॉट कंफ्यूज्ड और मैंने राइट साइड पे उसको देखा और मैंने कहा क्या है। बस इतना ही बोलना था कि दोनों लोग एकदम पीछे को भाग भाग गए। मेरे पीछे गाड़ियां खड़ी थी, मुझे कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि हुआ क्या। एंड द नेक्स्ट मोमेंट वो रियलाइजेस कि नॉन ड्राइविंग सीट पे, फ्रंट सीट पे मेरे दोनों मोबाइल्स पड़े थे और दोनों मोबाइल लेके वो लोग भाग गए वहां पे। एंड आई वाज शॉक्ड, द प्लेड, कि मुझे पता ही नहीं चला। और 2 दिन के बाद मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पर मेरा सेमिनार था। एवरीथिंग गॉन, माय मोबाइल गॉन, माय कॉन्टैक्ट नंबर गॉन, एवरीथिंग। और मेरे पास उस समय 2 ऑप्शंस थे। पहला कि मैं फ़ोकस करूँ उसके ऊपर
कि मेरा लॉस हो गया एंड ओ माय गॉड आई लॉस्ट माय मोबाइल्स, एंड सेकंड वाज मजा आ गया, चलो गए, नाउ इज द टाइम टू मेक न्यू मेमोरीज, मुझे नया करने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखूंगा। और जैसे ही मैंने अपने माइंड को सेट किया ना, तो जो फीलिंग थी ना वो बिल्कुल वहां से गायब हो गई एंड आई वाज नॉर्मल, मुझे फील नहीं हुआ। अब ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कोई आपकी लाइफ में इंसिडेंट होता है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने उससे पॉजिटिव लाइफ लेसन्स लेने हैं या नेगेटिव लाइफ लेसन्स लेने हैं, और उससे आपने क्या बिलीफ सिस्टम बनाना है। देखिए ये तो एक बहुत बुरा इंसिडेंट था, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव लर्निंग में चेंज कर दिया। थर्ड, आपको कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना है, चूज योर थॉट्स। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कैन वी चूज योर थॉट्स, मैंने कहा बिल्कुल। आप एक बात बताओ, आप एक मार्केट में जाते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई ड्रेस लेने गए हैं, तो आप कितनी सारी चीजें देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, फिटिंग देखते हैं, साइज देखते हैं, अपने हिसाब से बेस्ट लेते हैं कलर। आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, घर पेंट कराने जा रहे हैं, फर्नीचर लेने जा रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग, ऑल क्या हो रहा है, आप चूज कर रहे हैं। तो आप इसी तरह अपने थॉट्स को भी चूज कर सकते हैं। कैसे? एक्सपर्ट मानते हैं कि हमारे को एक दिन के अंदर, एक एवरेज व्यक्ति को 60,000 से 80,000 थॉट्स 24 घंटे के अंदर आते हैं। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2500 टू 3300 थॉट्स इन अ डे। अब इतने सारे थॉट्स आएंगे, 90% ऑफ द थॉट्स आर द सेम व्हाट यू हैड इन द प्रीवियस डे, और उसमें से मैक्सिमम नेगेटिव थॉट्स होंगे। अब अगर आपको थॉट चूज करना है आगे अपने, तो योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्रीज। करना क्या है, सिंपली किसी ने आपको कुछ कहा, आपको पता है आप क्या हैं, व्हाट यू आर, वो थॉट को सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए वहीं पे। और जहां आपने उस थॉट को रिजेक्ट कर दिया, उस थॉट को एनर्जी नहीं दी, उसको फोकस नहीं दिया, तो वो थॉट आपको परेशान करने ही नहीं वाला। एंड दिस इज अ सिंपल वे ऑफ चूजिंग योर थॉट्स। आई कॉल दिस अ लेफ्ट एंड राइट रूल। मेरा लेफ्ट एंड राइट रूल है ये, कि जब भी किसी ने आपको कुछ बोला, यहां से एक लेफ्ट से सुना और राइट से आपने उसको बाहर कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन हैं। अगर आप हर नेगेटिव थॉट को दो सोचने लगेंगे तो आप डाउट में आ जाएंगे, और अगर आप डाउट में आ गए तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू। अब इस सेशन को हो सकता है 100 में से 80 या 90 लोग को अच्छा लगे, और मे बी 10 लोग हैं उनको अच्छा ना लगे। अब किसी ने मुझे कोई नेगेटिव कमेंट दे दिया, अब ये मेरी चॉइस है कि अगर मैंने अपने नेगेटिव कमेंट पे फोकस करना शुरू करा तो हो गया का, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, और इमीडिएटली मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, मुझे उस नेगेटिव थॉट से रिलेटेड जो मुझे कमेंट मिला उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देगा। अब मेरे पास, माइंड के पास बहुत सारे और वो आ गए एविडेंसेस कि व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट गुड। तो होगा क्या, मैं और नेगेटिव उसमें चले जाऊंगा। मे बी नेक्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग, माई क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, माई टॉक्स विल गो डाउन, एंड अल्टीमेटली मुझे और नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और शायद हो सकता है मैं इस स्पीकिंग को बंद कर दूं। ऑन द अदर साइड, अगर मेरे को जो थॉट है, मैं अपने पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर मैं फोकस करूंगा, तो मुझे लगेगा कि यस आई एम डूइंग सो गुड, माय ब्रेन विल गिव मी सो मेनी एविडेंसेस ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स जो मेरे को इन द पास्ट आए हैं और मेरे यहाँ स्टोर्ड हैं। तो अल्टीमेटली जब मैं उन पे फोकस करूंगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मेरी जो रिसर्च होगी वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, मेरे इनपुट्स और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, और मैं और ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों के ऊपर बोलूँगा, और मेरी क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होने वाली है। सो सिंपल, आप अपने कोई भी थॉट्स हैं उसको चूज करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आप कॉन्शियसली करना शुरू करेंगे, और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपको ये अनकॉन्शियसली आप करने लग जाएंगे, अपने थॉट्स को चूज करने लग जाएंगे, इस लेफ्ट एंड राइट रूल को यूज करेंगे, एंड यू विल बी टोटली इन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स टॉक अबाउट मनी नाउ। मनी, पैसा क्या है? When I was writing my book on inner transformation, मैंने बहुत लोगों से बात करी कि पैसा अल्टीमेटली क्या है उनकी जिंदगी में। तो कुछ ऐसे भी ज्ञानी लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि पैसा तो बहुत गलत चीज है, ज्यादा पैसा आने से आपको गलत आदतें पड़ जाती हैं, आप आदतें करोगे, आप गलत काम करोगे। ठीक है,
कुछ ने कहा कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ही पैसा है, कुछ ने बोला कि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ। ट्रू। एक्चुअली अगर आप पैसे को देखेंगे ना, तो पैसा इज अ टूल। अब हमने पहले एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट किया था और शायद उस टेस्ट से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि वी नीड टू लिव अ बैलेंस लाइफ, जहां हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों, फैमिली अच्छी हो, करियर अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो। क्योंकि अगर सिर्फ आप पैसे पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, पैसे पे फोकस से आप हेल्थ लूज करेंगे या आप रिलेशनशिप लूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज लाइफ। आज की डेट में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अब मैं आप छोटा सा आपको एक लाइफ इंसिडेंट आपको स्टीव जॉब की कहानी से आपको बताता हूं, एंड दिस विल मेक यू टोटली क्लियर कि व्हाट मनी इज। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, आप सब लोग उनको जानते हैं। डू यू नो he died at the age of 56 years from pancreatic cancer। तो उस समय जो वो हॉस्पिटल में अकेले उन मशीनों की बीप्स के बीच में पड़े हुए थे, तो अब उन्होंने अपनी वो लाइफ की ना सारी चीजें उनको याद आ रही थी, और उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ एक मैसेज दिया कि जब आप पैसा कमाते हुए एक शिखर पे पहुंच जाते हैं, तो वहां से आपको वो चीजें करनी चाहिए, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी। You should work on your relationship, you should work on your travel, you should work on so many things जो आप जिंदगी में नहीं कर पाए, because money is not everything। उन्होंने कहा जिस समय वो उनकी डेथ हुई थी, उनका जो नेट वर्थ था दैट वाज $7 बिलियन। कन्वर्ट करेंगे आज की डेट में तो 56,000 करोड़ रुपए। 56,000 करोड़ रुपए के होते हुए भी उन्होंने ये लाइव लेसन्स दिए थे कि उन्होंने टाइम पे अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं किया, ट्रैवल पे काम नहीं किया। आज उनकी जो मेमोरीज हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस फेम को, इस पैसे को कमाने में लगा दी। आप पैसे से अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद कर सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं खरीद सकते। आज डेथ बेड के ऊपर मैं किसी को अपनी ये सारा पैसा देने के बाद भी अच्छी हेल्थ नहीं खरीद सकता, पैसे से मैं रिलेशनशिप नहीं खरीद सकता। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, बॉलीवुड के अंदर, हाई सोसाइटीज के अंदर पैसे की कमी नहीं है, फिर भी वहां लोग डिप्रेशन में जाते हैं, फिर भी वहां सुसाइड्स हो रही हैं, वहां पे भी कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। तो इससे क्या आप समझ रहे हैं, क्या समझ सकते हैं, लेसन ले सकते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट एवरीथिंग। देखिए कि आपके पैसे से क्या रिलेशनशिप है, और अगर आपकी लाइफ में पैसे की कमी है तो देखिए कि पैसे को लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या बिलीफ सिस्टम रखे हुए हैं। अगर वो गलत बिलीफ सिस्टम हैं तो आप उनको एफर्मेशंस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप उनको चेंज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ नाउ। आज हम इंफॉर्मेशन के ज़माने में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आज हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ सेशंस हो चुके हैं, हम न्यूट्रिशन पे बात कर चुके हैं, सब पे बात कर चुके हैं इनसे कुछ सेशन में अंदर, तो मैं इसको थोड़े से फास्ट में टाइम को देखते हुए फास्ट इसमें बात करूँगा। आज बहुत सारी लाइफस्टाइल्स हो रही है, हमारी लाइफ दिन पे दिन ईजी होती जा रही है, और मेरा मानना ये है अगर लाइफ इजी हो जा रही है, ऑटोमेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, नई नई मशीन्स आ रही हैं, आपकी लाइफ इजी हो रही है, तो आपको उस लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन साथ के साथ एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में सर्टेन चेंजेस लेके आने हैं। क्योंकि जिस तरह स्क्रीन की वजह से, मोबाइल्स की वजह से हमारी मोबिलिटी खत्म होती जा रही है, तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, कुछ डिफरेंट हमें हैबिट्स डालनी पड़ेंगी, जहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाके दोनों वर्ल्डली लाइफ को भी और अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जितनी भी मशीन्स आ जाएं, जितनी भी ऑटोमेशन हो जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाए, लेकिन जो भगवान ने हमारी ये जो मशीन बनाई है ना, ह्यूमन बॉडी,
इसका मुकाबला नहीं हो सकता। और ये जितनी भी चीजें आ रही हैं उसको ऑपरेट करने वाले, यूज करने वाले तो हम ही हैं ना। तो हमें अपनी लाइफ में डिफरेंट चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी भगवान ने बनाई है कितनी सुपर्ब बनाई है? हमारी जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ 37.2 ट्रिलियन सेल्स। अगर हम छोटी से छोटी अपनी बॉडी को देखते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में बचता है सेल। और अगर हमने छोटा सा, हम अगर ध्यान देंगे, साइंस में हमने पढ़ा था, होते हैं उसका सबसे छोटा पार्ट होता है आपका न्यूक्लियस, और उसके पीछे चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रोटेट करते हैं और आपस में अट्रैक्शन, एक एनर्जी होती है। तो अगर आप सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो हम क्या हैं? हम हैं एनर्जी, हम हैं फ्रिक्वेंसी। और अगर हम फ्रिक्वेंसी हैं और अगर हम एनर्जी हैं तो हमें हर टाइम सीखना होगा अपने आप को हाई एनर्जीज में रखने के लिए। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें अपनी लाइफ में अपनानी होंगी, जैसे लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। अभी इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करना चाहता था, जैसे कि गोल्स के ऊपर, विजन के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, power of people around you, what makes you happy. You need to jump out of your comfort zone. And the best part जो उसके बाद सब कुछ सीखने के बाद है वो है एक्शन। तो सबसे पहले इन सब टॉपिक्स को देते हुए, क्योंकि मैं आज कवर नहीं कर पाया हूं, तो इसलिए मैं अब जिन लोगों ने भी इस सेशन को एंड तक देखा है, मैं उनको एक बोनस देने जा रहा हूं। जी हाँ, एक बोनस। द ई बुक, जिस बुक के अंदर मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं इन डिटेल, उसका लिंक अभी टीम अध्ययन आपको शेयर करेगी चैट बॉक्स में। और आज और कल के दिन आप उस बुक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप उस बुक को पढ़ने के बाद जितने भी टॉपिक्स अभी मेरे छूट गए हैं, जो मैं कवर नहीं कर पाया शॉर्ट पीरियड ऑफ 40 मिनट्स में, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, गोल्स, विजन, हैबिट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पावर ऑफ पीपल अराउंड यू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, why you need to jump out of your comfort zone, और एक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक उस ई बुक में आप फ्री में डाउनलोड करके इन पे पढ़ सकते हैं। और आप बहुत सी नॉलेज दे सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अबाउट द इनर ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ टू चेंज योर माइंडसेट। That was amazing, Sumit. I first of all, thank you very much. The links are there in the chat box, everybody. Have a look at the chat. You have the link to the free copy of the book Inner Transformation. Am I right, Sumit? Yes. That's the free ebook of the same book that I have in my hand right now. You get it for free. What else can you ask for? That was cherry on the cake. Now, can we all give him a big round of applause for this amazing session? Let's do it again. Wow. Sumit, you're awesome. Thank you so much. It was absolutely incredible listening to your ideas. मजा आ गया। और जिस अंदाज में आपने बहुत ही सरल, बहुत ही सीधे अंदाज में जिस तरह से आपने बताया सब, again, I think audience will agree with this, that we are blessed. They are blessed. I am blessed to have speakers like you. Yesterday it was Deepika's session. It was flawless. और आज का session as good as yesterday. It was absolutely flawless. You were glowing with the flow. तो आपकी कहानी, आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी, आपके आइडिया, सुमित, spot on. Thank you so much for sharing this, man. Thank you. It was amazing listening to your ideas. सुमित, अब जल्दी से मुझे एक बात का जवाब दो। क्वेश्चन ये है कि इन आइडियाज को लेने के लिए, डू यू रेकमेंड, आई मीन टू कीप ऑन लर्निंग दीज आइडियाज, डू यू रेकमेंड पीपल टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स? डू यू रेकमेंड पीपल टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस? क्या सजेस्ट करते हो, क्या करना चाहिए कि ये मोटिवेशन, ये जो लर्निंग से ये डाउन ना जाए, आदमी लर्न करता रहे, उस प्रोसेस का पार्ट बना रहे? क्योंकि आज आपको सुना, कल एफर्मेशन किया, फॉलो किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, डाउन, रूटीन में फंस के डाउन। कोई सजेशन है आपका टू कंटिन्यू विद दिस? देखिए, अगर आपको अपने में चेंज लाना है तो जितने
जितने भी टॉपिक्स पे हमने बात किया है, अब आपको एक क्लैरिटी आ गई। अब आप थोड़ा सा अगर उस पर रिसर्च करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप यूट्यूब में आपने इतने सारे सेशंस करने वाले हैं 30 दिन के अंदर, और वो सारे यूट्यूब में हमेशा हैं। तो मैं तो ये करने वाला हूं कि जितने भी आपके सेशंस हुए हैं, टाइम बाय टाइम, व्हेनेवर, मैं कैसे करता हूं अपने आप को, व्हेनेवर आई गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, मे बी 60 मिनट्स 90 मिनट्स, और उस टाइम पे मैं सिर्फ ये जो बढ़िया बढ़िया जैसे आपके सेशंस हुए हैं, कुछ बहुत सारे यूट्यूब पे इससे रिलेटेड वीडियोस हैं जो मेरे इंटरेस्ट की हैं, मैं उनको सुनता हूँ। ठीक है। अब उसको सुनने के साथ क्या होता है, आपको बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज आते हैं, क्योंकि क्या जिस समय मैं बोल रहा हूँ ना अभी, I am speaking only on the topics which I already know. But Right. when I'm listening to others, I'm learning so many new things, so many new ideas. अब जैसे आपने जो 30 डेज का सेशन हुआ है ना, इट जो हो रहा है, और इट्स सो वंडरफुल कि मैंने कई जो स्पीकर्स थे उसको 2-3 बार जाके डिफरेंटली बार बार सुना है, क्योंकि आप एक ही चीज को एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, हर बार आपकी लर्निंग डिफरेंट होने वाली है। Wow, that's a very valid point. अब मैंने कुछ बहुत सारे जैसे डिफरेंट हैक्स सीखे हैं, कुछ मैंने गुरुओं से सीखा है, सिद्धों से सीखा है। अब जैसे आप एक्सेप्टेंस की बारी आ जाती है, अब एक्सेप्टेंस पे आपने बात करनी है, तो मेरे गुरुजी ने बहुत सिंपल चीज सिखाई है कि अपना हाथ अपने हार्ट पे रखें और 10 बार बस इतना ही रिपीट कर दें कि ईश्वर जो करते हैं ठीक करते हैं, ईश्वर जो करते हैं ठीक करते हैं। यही आपने बार बार रिपीट किया तो आपके में एक्सेप्टेंस आ जाएगी। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उस समय उस हीट ऑफ द मोमेंट में एक स्पेशल चीज कर दीजिए, 30 तक काउंट कर लीजिए मन के अंदर, 1 2 3 4, और जहां आपने 30 तक काउंट किया, आपकी गुस्से की इंटेंसिटी बिल्कुल नीचे हो जाएगी और शायद आपके रिएक्शन सब कुछ बदल जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब आपको अच्छी चीजें आपको लर्निंग है। अब वैसे मैंने आपको बताया एफर्मेशंस के ऊपर, तो मैंने अपने फोन में 20 मिनट्स की एफर्मेशंस पूरी रिकॉर्ड की हुई हैं, और बहुत जल्दी मैं उनमें से कुछ मनी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर यूट्यूब में शेयर करने वाला हूँ। तो इससे होगा क्या, जब भी आपको सुनना है वो 10 मिनट का आप रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे जाएं, उसको सुन लें, एंड इट्स सो वंडरफुल, इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। तो दोस्तों, सुमित सेज कि और कुछ भी नहीं तो रिकॉर्डिंग ही सुन लीजिए इन सेशंस की जो इस समिट में हुए हैं। And as he said, every time when you will hear them, every time when you will listen to these ideas, कुछ नया आप महसूस करेंगे, कुछ नई लर्निंग आपको मिलेगी, और ये सच है। I completely agree with what he said. आप एक ही किताब को 3 बार पढ़िए, तीनों बार आपको लगेगा ये मैंने पहले कैसे मिस किया। आप एक ही सेशन को दोबारा सुनिए, आपको लगेगा ये पहले बोला था क्या। You will get new learnings. That was amazing, Sumit. I'm sure ये टॉपिक कितना वास्ट है, इतना बड़ा है। You are an expert on this topic. आप इस टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप्स करते हैं for days, and you know it's a big topic. It was, I'm sure, tough for you to concise all of that, but in the interest of time, we will have to restrict. We have to take a pause here, not a stop, not a full stop, but a comma, because I'm sure we will have many more such sessions for the community in future. But so for today, yeah. I'm looking forward to more summits from your side. Looking forward to two more summits indeed, Sumit. आपका साथ, आप जैसे एक्सपर्ट्स का साथ रहेगा तो जरूर एक से बढ़कर एक समिट होंगी, और ज्यादा लाइव्स को विल बी एबल टू इम्पैक्ट। दोस्तों, ई बुक का लिंक मिस मत करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इट्स अ फैंटास्टिक बुक, इट्स योर ओन जर्नी टू सक्सेस। It was amazing working with Sumit on this book, and इसके बाद इन्होंने इसका हिंदी वर्जन पे काम किया। थर्ड बुक, Sumit, you're working on the third book now? Yes, now I'm working on my third book. Which is amazing, which is amazing. Well, Sumit, thank you very much for coming here today. It was my pleasure to host the session for you. Thank you so much once again. Any last words before you go for the audience? Any last words, Sumit, for the audience? Definitely. मेरे लिए जो सबसे जो मेरी लाइफ की लर्निंग है ना, दैट इज लिविंग इन द प्रेजेंट। आप इसको सीखिए कि किस तरह से आपने अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना है और आपने हर एक मूवमेंट को एंजॉय करना है, बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। आपको ये नहीं पता कि आपकी जर्नी इस प्लैनेट अर्थ पे कब तक है। हर श्वास हमारी काउंटेड है और लिखी हुई है, तो इसीलिए जो है वो अब है। जो मैं आपसे समय बात कर रहा हूं, यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। इस सच्चाई को एंजॉय कीजिए।
इस मोमेंट को एंजॉय किया है और आज मैंने अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को बहुत एंजॉय किया है अपने फेवरेट टॉपिक इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे बोलते हुए। थैंक यू सो हमने भी मच इसे बहुत सुमित, हमने भी इसे बहुत एंजॉय किया है। हमारा भी फेवरेट टॉपिक आज ये बन गया और आप बन गए हमारे फेवरेट स्पीकर। थैंक यू सो मच सुमित कुमार सूद फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच, सी यू सून। वेल फ्रेंड्स, दैट वाज सुमित एंड व्हाट अ सेशन इट वाज। आई लव्ड इट। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी जर्नी पर ले गए वो हमें, जिस जर्नी पर इनर ट्रांसफॉर्मेशन तो पक्का है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। और एक बार ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो आप देखेंगे ये जो बाहर की दुनिया है ना, एक किताब में मैंने पढ़ा था, किताब का नाम है डायनामिक थॉट। जरूर पढ़िएगा किताब, एक पुराने समय की लिखी हुई किताब है डायनामिक थॉट। उस किताब में ये लिखा था that the outer world of matter, this outer world of matter is subservient to the inner world of mind. अगर ये inner world of mind, if you're able to get this transformation done inside, all of the everything that you see